Good morning, students. Today we'll be starting with the design process of V-belt drive. Uh, we have studied already what is the meaning of flexible machine elements. So, to put you in front of you, among all the flexible machine elements that we have studied or we have, V-belt drives are among the most widely used belt drives or drives for that sake. Okay. Now these V belts, they have trapezoidal cross section. This is there on the next PPT that I'll be showing you, but yes, to put you, it is like a truncated cone shape, and they are jointless. Therefore, this point I have kept here. They have got trapezoidal cross section and they are not having any joints. Now obviously if the belt is of V shape, the pulley groove also have to be V shaped, and it is because of this fact that V belts in general are a bit costlier. Fine. The next point that we know about V belt drive is it is considered as a positive drive. That means we can easily neglect the sleep that may happen in the V belt drives. Fine. The next point in the PPT is multiple belts can be used side by side so as to transmit required amount of power. Fine. The next is these V belts are mostly recommended for shorter center distances, and uh, this is in contrast with this is in contrast with the flat belts that flat belt have can be used over longer distances, but when it comes to V belts, they have to be used for shorter distances. They can transmit velocity ratio up to 1:10, and like I said, belt slip is very minimal, and therefore we neglect the belt slip in designing V belt drives. Okay. Now as these belts are of endless type, that means they don't have any joint, V belts do not suffer from any joint failure, and they are relatively quieter in operation. यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ये भी डिस्कस मैं बोलना चाहूँगा कि जो फ्लैट बेल्ट में हम लोग टाइप ऑफ जॉइंट लेके उसकी एफिशिएंसी लेके हम लोग जॉइंट का स्ट्रेंथ निकालते थे, वो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव दिस फिगर इन विच द टॉप पोर्शन ऑफ द बेल्ट, जो विड्थ गिनी जाती है वो टॉप पोर्शन पे गिनी जाती है. ये जो इंक्लूडेड एंगल है इसको वेज एंगल या फिर ग्रूव एंगल बोला जाता है, जो थिकनेस टॉप टू बॉटम फ्लैट सरफेसेस से गिनी जाती है. नेक्स्ट वी हैव द स्टैंडर्ड बेल्ट सेक्शंस फॉर वी बेल्ट. अब यहाँ पे ये चीज़ मुझे हाईलाइट करनी है कि लाइक वी कैन सी इन दिस PDF, लेट मी ओपन द टेबल. It is table number 15-8 if I'm not wrong. Just let me open. Yes, the table number 15-8. Here we can see the V belts are designated by a certain designation A, B, C, D, E, and this in turn depends on what is the maximum range of power it can transmit. So let me bring your notice to this particular column. Like say for example, I have to transmit 3 kilowatt of power. I have to transmit 3 kilowatt of power. In that case, my belt designation will be A. But you might observe that 3.5 ये जो वैल्यू है ये A डेजिग्नेशन में भी है और B डेजिग्नेशन में भी है. Now the decision lies with you. You can go for A designation or you can go for B designation also. But keep in mind, once the designation, like the designation of B, designation of B is higher than that of A, designation of C is higher than that of B. Why? Because as you can see, as we go on increasing the designation, like earlier it was A, then it was B, then it is C, we see the nominal width and nominal thickness increases. This is with respect to the V belt. We know this thing that as the thickness and the width increases, it in turn results in the economy of the belt, right? So yes, if I can select designation A for, let us say, transferring 3 kilowatt of power,
I will use designation A because it is less costly, right? So that is one thing I had to discuss with you all. Now let us look to the problem statement so that I can start with the design process. Okay. All right. Before that, let me tell you what are the advantages and disadvantages of V-belt drives over flat belt drives. See, we have to make a comparison to tell you advantages and disadvantages. So, to tell you the advantages of V-belt drives over flat belt, the V-belt drives are relatively compact as the center distance between the pulleys is very less. It is a positive drive because slip is negligibly small and hence it can be neglected. Now, since the third advantage is, since the V-belt are made up of endless belt, देर इज़ नो जॉइंट प्रॉब्लम. लाइक ऐसा नहीं होगा कि आपका बेल्ट जॉइंट से फेल हो गया, ठीक है. उसकी वजह से लाइफ जो मिलती है वो ज़्यादा मिलती है, एंड दैट इज़ आवर एडवांटेज नंबर 4. The next advantage I can tell you is the operation is relatively quiet as compared to flat belt drive. The belts have the ability to cushion the shock when the machine is started. Higher velocity ratios can be obtained. ये जो पुली का शेप होता है जो मैंने आपको दिखाया सेकंड स्लाइड पे, उसकी वजह से पुली और बेल्ट में एक वेजिंग एक्शन होती है, पुली और बेल्ट में एक वेजिंग एक्शन होती है, और उसके वजह से आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो मिलता है वो रिलेटिवली हायर साइड में मिलता है, ठीक है. एंड द लास्ट इज वी बेल्ट्स कैन बी ऑपरेटेड ऑन आइदर डायरेक्शन. मतलब इसमें टाइट साइड और स्लैक साइड का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, जो हमको फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स में देखने को मतलब हमने देखा था वहाँ पे, ठीक है. नाउ coming to the disadvantages of V-belt over flat belt drive. First disadvantage is it cannot be used over larger center distances. बराबर, क्यों? बिकॉज वो बेल्ट का जो वेट पर यूनिट लेंथ होता है इट इज़ ऑन अ हायर साइड. फाइन. नेक्स्ट इज जो कंस्ट्रक्शन होता है पुलिस का V-belt ड्राइव के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा हेवी होता है और इट इज़ कॉस्टलियर, ठीक है, एज कम्पेयर टू फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स. V-belt drives आर सब्जेक्टेड टू सर्टन अमाउंट ऑफ क्रीप. अब क्रीप फ्लैट बेल्ट में भी होता है बट V-belt में थोड़ा सा इसका प्रमाण ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है. द बेल्ट लाइफ इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर चेंजेस, इम्प्रॉपर बेल्ट टेंशन एंड मिसमैचिंग ऑफ बेल्ट लेंथ, एंड दैट इज़ आवर सेकेंड लास्ट डिसएडवांटेज. एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज़ कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण एक सर्टन स्पीड के बिलो और एक सर्टन स्पीड के ऊपर हम लोग V-belt को ऑपरेट नहीं कर सकते, एंड दैट वाज द लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ V-belt ड्राइव ओवर द फ्लैट बेल्ट ड्राइव. नाउ द पोर्शन दैट वी विल बी कंसिडरिंग टुडे इज, टुडे वी विल गो अप टू फाइंडिंग आउट द साइज एंड नंबर ऑफ बेल्ट्स. Designing of pulley we will take it in the next class. Alright, so let us start with the numerical. A V-belt drive is to be used for transmitting 30 kilowatt from 100 rpm motor to the reciprocating air compressor running at 360 rpm. Now here ये लाइन पढ़ के हमको ये समझ में आता है कि ड्राइविंग मेंबर इज अ मोटर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर, एंड द ड्रिवन मेंबर इज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, राइट. The driving member electric motor is running at 1000 rpm, right, whereas driven member is running at 360 rpm. The meaning is we have a smaller pulley at the electric motor and a larger pulley at the compressor side. मतलब driven side में larger pulley है और driving side में electric motor, that means smaller pulley है, ठीक है. The value of 30 kilowatt, the value of power 30 kilowatt that is given is the rated power we have, ठीक है. So next it says if the center distance is limited to 1750 mm, determine the size and number of belts. center distance दिया हुआ है, ठीक है. तो ये given data हम लोग नीचे लिख लेते हैं. given data says rated power is 30 kilowatt, rpm of larger pulley is 360, rpm of smaller pulley is 1000 rpm. उस तरह से इसके सबस्क्रिप्ट अपन ने यूज़ किए हुए. L stands for larger, S stands for smaller, ठीक है. Now the first step we do is we design the we calculate the design power from table number 15-9. Now let us go to table number 15-9. If we go to table number 15-9, what we observe there is just a minute.
Yes, the first thing, design power is given by PD is equal to PR into KL, where PR is rated power and KL is load factor, which is to be selected from table number 15-2. Now let us go to table number 15-2. The table number 15-2 tells us that we have to select load factor as per the driving and driven machinery. ठीक है. Now driving is electric motor, we know that. अब driven side में हमको ढूंढना है कि रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर कहाँ पे है. तो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर तो हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बट रेसिप्रोकेटिंग पंप हमको मिल रहा है. नाउ सिंस वी डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक मोटर में रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, it will be a relatively less error prone to select reciprocating pumps as the driven machinery, and therefore corresponding value of load factor that we get is 1.5, and therefore we multiply the rated power of 30 kilowatt with the load factor of 1.15, and we get the design power of 34.5 kilowatt. ठीक है. Now in the same step what we do is we select designation of belt as per table number 15-8. Now let us open table number 15-8. I have shown you this table, table number 15-8. Now let us go through it once again. Now here in this column we have to select the range of power. अपना आंसर क्या है? 34.5 किलोवाट. तो ये रेंज आएगा क्या? नहीं आएगा. 1.5 से 15 के बीच में आएगा क्या? नहीं आएगा. 10 से 75 के बीच में आएगा क्या? हाँ, 34.5 किलोवाट जो है वो 10 से 75 के बीच में आता है. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखते हैं तो अपना डेजिग्नेशन मिलता है C, एंड देयरफॉर वी विल सिलेक्ट बेल्ट विथ डेजिग्नेशन ऑफ C. अब इसके रिलेटेड वैल्यूज़ भी हम लोग इसी टेबल में इसमें लिख लेते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर द रिलेटेड वैल्यूज़? नॉमिनल विड्थ इज 22 mm डिनोटेड बाय स्मॉल w. दिस इज स्मॉल w, दिस इज नॉट कैपिटल W. नॉमिनल थिकनेस इज 14. रिकमेंडेड पुली डायमीटर इज 225. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स यूज इज 14. सजेस्टेड रेंज ऑफ पावर तो हमने देख लिया ऑलरेडी. बेंडिंग स्ट्रेस फैक्टर KB इज 125.1 into 10 to the power 3, एंड सेंट्रीफ्यूगल टेंशन फैक्टर KC इज 7.72. माइंड यू यहाँ पे अपने पास रिकमेंडेड पुली डायमीटर दिया हुआ है. इसका मीनिंग ये है कि आप जो स्मॉलर पुली का डायमीटर आप ले सकते हो, इट हैज़ टू बी मिनिमम इक्वल टू 225. इट हैज़ टू बी मिनिमम इक्वल टू 225. इट कैन बी लार्जर दैन दैट ऑल्सो. ठीक है. पर ये लेके चलता नहीं है. वी हैव टू प्रूव दैट द डायमीटर दैट वी विल एज्यूम इन द कमिंग स्टेप्स इज़ करेक्ट और नॉट. ठीक है. तो ये डेटा हमने यहाँ पे लिख लिया. नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट पेज. In step number 2 we calculate peripheral velocity. Now how do we calculate peripheral velocity? अपने को पता है v is equal to pi dn by 60 into 1000. ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं जो वहाँ पे आपको दिख रहा है. डायमीटर कौन सा यूज़ करते हैं? स्मॉलर पुली का. स्मॉलर पुली का डायमीटर न्यूमेरिकल में दिया नहीं है, लेकिन ये बोला गया है कि मिनिमम विड्थ इज मिनिमम डायमीटर इज 225 mm. तो लेट अस से वी एज्यूम डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली एज 250 mm, क्योंकि 225 से नीचे हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते, और उसके हिसाब से हम लोग VP कैलकुलेट कर लेते. तो अपने को VP मिलता है 13.1 मीटर पर सेकेंड. नाउ इफ़ आई हैव टू शो यू 13.1 मीटर पर सेकेंड को अगर मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 60 एंड वी गेट 786 मीटर पर मिनट एज द वैल्यू ऑफ VP. ठीक है. Now let me bring it to your notice that in table number 15-10 we have velocity range for V belts. It is from 300 to 1500 meter per minute, whereas the value we calculated was 786 meter per minute, and therefore the diameter value that we have taken equal to 250 is correct. Why? Because VP अपने को जो 786 meter per minute या फिर 13.1 meter per second मिला है, इट इज़ बाय कंसिडरिंग डायमीटर इक्वल टू 250 mm. ठीक है. तो यहाँ से अपना स्मॉलर पुली का डायमीटर फाइनलाइज हो गया. ठीक है. कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3. हियर we calculate the diameter of larger pulley. In step number 3 we calculate the diameter of larger pulley. Now like I said, V belt is considered as a positive drive and therefore slip is negligibly small, and therefore directly we can use this formula DL into NL, that is diameter of larger pulley into RPM of larger pulley, should be equal to diameter of smaller pulley multiplied by diameter RPM of smaller pulley. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि NL, NS और DS ये वैल्यूज़ अपने पास अवेलेबल है, और वहाँ से डायमीटर ऑफ लार्जर पुली हम लोग फाइंड आउट करते हैं, विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 695 mm. इसको राउंड अप करते हैं तो 695 mm. सो नाउ वी हैव डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली इक्वल टू 250 mm एंड डायमीटर ऑफ लार्जर पुली इक्वल टू 695 mm. ठीक है. दैन इन द सेम स्टेप व्हाट वी डू इज वी कैलकुलेट एंगल ऑफ लैप फॉर, यहाँ पे बोथ द पुलिस लिखा है बट बोथ द पुलिस निकालने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन कंटिन्यू विथ द एंगल ऑफ लैप ऑफ स्मॉलर पुली. तो यहाँ पे ये फार्मूला है, ये फार्मूला हम लोग फ्लैट बेल्ट में बहुत बार यूज़ कर चुके हैं. सेम फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ करना है, और यहाँ से मुझे एंगल ऑफ लैप मिलता है 2.88.
यहाँ पे जो सॉल्व किया गया है वो इस तरह से सॉल्व किया गया है कि यहाँ पे एंगल ऑफ लैप दोनों का निकाला गया है, स्मॉलर पुली लार्जर पुली का, और उन दो वैल्यूज़ में से स्मॉलर वैल्यू को सिलेक्ट किया गया है। अब फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि हमेशा स्मॉलर पुली का एंगल ऑफ लैप कम आएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, एंड देयरफॉर आई सेड कि यहाँ पे दोनों पुलिस का एंगल ऑफ लैप निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वी विल हैव थीटा इज इक्वल टू 2.88 एंड वी विल कंटिन्यू विद द वैल्यू ऑफ थीटा एज 2.88। ठीक है, नाउ F1 बाई F2 का हम लोग रेशो लेते हैं, फिर F1 माइनस F2 का हम लोग रेशो लेते हैं। ये सारी स्टेप्स फ्लैट बेल्ट के जैसे ही है, सिर्फ एक चीज़ आपको ये करनी है कि आर्टिमिनी स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि F1 बाई F2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा इंटू कॉसेक ऑफ अल्फा बाई 2। ये फार्मूला एक आपको फार्मूला याद करना है। ठीक है, ये फार्मूला डिज़ाइन डेटा बुक में कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है, ये एक फार्मूला आपको याद करना है। फ्लैट बेल्ट में ये फार्मूला क्या है? F1 बाई F2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा। वी बेल्ट में क्या है? F1 बाई F2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा कोसेक ऑफ अल्फा बाई 2। नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा? अल्फा इज द ग्रूव एंगल, लाइक आई हैव शोन इन दिस पीपीटी, आई विल शो इट टू यू वंस अगेन। दिस एंगल जो यहाँ पे वेज एंगल बोला हुआ है, इसी को अपन ग्रूव एंगल बोलते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल अराइज इज कि ग्रूव एंगल हम कैसे सिलेक्ट करें? बिकॉज यहाँ पे देखो आप, म्यू और थीटा तो अपने पास है, म्यू कैसे मिलता है ये मैं आपको बताऊंगा, पर अल्फा कहाँ से आ रहा है ये भी अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस कि म्यू कहाँ से आया। अगेन टेबल नंबर 15-10 से आप देख सकते हो कि म्यू इज टेकन एज 0.3 यूजुअली, एंड देयरफॉर अगर हम लोग ये रिलेशन में देखते हैं तो म्यू और थीटा की वैल्यू, थीटा तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है इसके पहले 2.88, म्यू की भी वैल्यू मिल गई। अल्फ़ा कहाँ से सिलेक्ट करना? तो अल्फ़ा सिलेक्ट करने के लिए हमको थोड़ा सा अगले एक टेबल में जाना पड़ता है, विच इज़ टेबल नंबर 15-11। आई विल रोटेट इट फॉर यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्फ़ा 38 है, अल्फ़ा 36 है, अल्फ़ा 34 है। आप अगर 36 और 34 का कॉलम देखते हो तो कुछ कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है। ठीक है, इसलिए अगली बार आप जब भी वी बेल्ट डिज़ाइन करोगे तब बिना ये टेबल देखे आपको अल्फ़ा इज इक्वल टू 38 डिग्री ले लेना है। ठीक है, बिकॉज आप देख सकते हो ये कॉलम में सारे बेल्ट ग्रूव सेक्शन के हिसाब से वैल्यूज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो अपने पास वैल्यूज़ कौन सी अवेलेबल है? 38 डिग्री, 36 डिग्री, 34 डिग्री। सी के लिए कौन सी अवेलेबल वैल्यूज़ है? 38 और 36। ठीक है, अपना बेल्ट सेक्शन सी है, बट वी विल गो विथ 38 डिग्री एज वेज एंगल और वेज एंगल और ग्रूव एंगल। ठीक है, सो यहाँ पे हमने 38 ले लिया, और इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ F1 बाई F2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा कोसेक ऑफ अल्फा बाई 2, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो F1 और F2 के बीच में मुझे रिलेशनशिप मिलता है, पहला रिलेशनशिप विच इज़ F1 इज इक्वल टू 14.2 इंटू F2। ठीक है, जो लोग डायरेक्टली मेरा ये वी बेल्ट का वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये थोड़ा सा सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार फ्लैट बेल्ट का जो पहला न्यूमेरिकल है वो देखिए, सो दैट बिकॉज दीज टू डिज़ाइन प्रोसेसेस आर इंटरडिपेंडेंट। तो जब तक आपको फ्लैट बेल्ट नहीं देखोगे तब तक आपको वी बेल्ट समझने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। ठीक है, जो चीज़ें कॉमन है बिकॉज वो थोड़ा सा मैं फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप इज F1 माइनस F2 इज इक्वल टू पी डी बाई वी पी। ये रिलेशनशिप भी हमने फ्लैट बेल्ट में देखा हुआ है। पी डी इज 34.5 किलोवाट डिवाइड बाई वी पी इन मीटर पर सेकेंड, एंड देयरफॉर वी गेट F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 2633.58। Now we have two relationship between F1 and F2, which is F1 is equal to 14.2 F2 and F1 minus F2 is equal to 2633.58. Therefore separately we can find out the value of F1 and F2. तो F1 और F2 हमने वैल्यू यहाँ पे निकाल के रख ली। अगला डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आपको Fi की वैल्यू नहीं निकालनी है। इनिशियल टेंशन जो आप फ्लैट बेल्ट में निकालते हो वो आपको वी बेल्ट में निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप वी डू इज़ वी फाइंड आउट पावर कैपेसिटी पर बेल्ट। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको नंबर ऑफ बेल्ट्स पूछे हुए हैं। तो बेसिकली हम ये करते हैं स्टेप नंबर 4 में, हम ये निकालते हैं कि एक बेल्ट कितना पावर ट्रांसमिट कर सकता है, ये वैल्यू हम पहले निकालते हैं। उसके बाद में हम टोटल पावर कितना ट्रांसमिट करना है उसके साथ उसको डिवाइड कर देते हैं, तो अपने को नंबर ऑफ बेल्ट्स मिल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? पावर पर बेल्ट इज एफ डब्ल्यू माइनस एफ सी ई टू पावर म्यू थीटा कॉसेक अल्फा बाई 2 माइनस 1 ई टू पावर म्यू थीटा कॉसेक अल्फा बाई 2 इंटू वी पी। अब म्यू की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है, वीपी की वैल्यू है, ये एफ डब्ल्यू और एफ सी क्या होता है इसके लिए आपको ये टेबल में जाना पड़ेगा। फिर से टेबल नंबर 15-9, यहाँ पे आप देख सकते हो एफ डब्ल्यू इज़ वर्किंग लोड विच इज़ गिवन बाय डब्ल्यू स्क्वायर, एफ सी इज सेंट्रीफ्यूगल टेंशन गिवन बाय के सी इज इक्वल के सी इंटू वी पी बाई 5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं एक बार रोटेट करता हूँ तो एफ डब्ल्यू इज़ वर्किंग लोड डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू कहाँ से मिला? डब्ल्यू अपने को यहाँ से मिला। ये देखिए यहाँ पे एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन।
हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सी सेक्शन के हिसाब से W की वैल्यू 22 है, ठीक है। तो ये 22 वैल्यू हमने यहाँ पे लिख के 22 स्क्वायर कर लिया तो 484 न्यूटन FW मिल गया। FC अपने को KC इंटू VP/5 स्क्वायर मिलता है, तो KC का वैल्यू भी हमने वही टेबल से निकाला था, VP हमारा कैलकुलेटेड डिवाइड बाय 5 करके स्क्वायर कर लिया तो 52.19 अपने को FW और FC की वैल्यूज़ मिल जाती है, ठीक है। वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे इनपुट किए, ये सारी वैल्यूज़ इनपुट किए तो अपने को पावर पर बेल्ट मिलता है 5245.47 वाट। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये है कि एक बेल्ट, वन स्ट्रैंड ऑफ वी बेल्ट इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग 5245.47 वैटेज ऑफ पावर, ठीक है। एंड देयरफॉर हाउ डू वी कैलकुलेट नंबर ऑफ बेल्ट्स रिक्वायर्ड? वी सिंपली डिवाइड टोटल पावर दैट नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड, दैट इज डिज़ाइन पावर, बाय पावर ट्रांसमिटेड बाय वन बेल्ट। तो ये अपने को मिलता है 6.58। नाउ इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट वी कैनॉट यूज़ partial number of belts, therefore we round this value and we get that we will require 7 number of belts if we have to transmit design power equal to 34.5 kilowatt, ठीक है। नाउ एक डिज़ाइन चेक अपने को ये करना है कि ये जो 7 नंबर ऑफ बेल्ट्स आई है, ये वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ बेल्ट से जो 14 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैंड्स 14, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 1 मिनट। आप देख सकते हो सी सेक्शन के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैंड 14 है, अपना वैल्यू इससे कम आ रहा है एंड देयरफॉर द डिज़ाइन इज ओके। दैट इज़ वन डिज़ाइन चेक दैट वी हैव टू परफॉर्म, ठीक है। नाउ द लास्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द बेल्ट। लेंथ ऑफ द बेल्ट का वही सिमिलर फॉर्मूला है, π/2 d1 + d2 + 2c + d1 - d2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4c, ठीक है। यहाँ पे प्लस यूज़ करना है अगर क्रॉस बेल्ट यूज़ हो रहा है तो, बट यहाँ पे ओपन बेल्ट है तो हमने माइनस यूज़ किया और उसके हिसाब से हमने लेंथ ऑफ द बेल्ट भी निकाल लिया, विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5.01 मीटर, ठीक है। टुडे वी विल स्टॉप